कहा कि सूरह इब्राहिम आयत नंबर सूरह नंबर 14 वर्स नंबर 24 को आप लोग देखेगा। तो आई होप के बहुत से लोगों ने ये किया और मुझे कुछ फीडबैक मिला है, एंड ट्रूली इट इज वंडरफुल to see how much there is and how easy it is for us to navigate this incredible resource of wisdom. Chat के ऊपर आप लोगों के responses आ जाएंगे तो I will be able to respond to them कि if not now maybe even later, but अभी अगर जो लोग के कोई feedback दे रहे हों या लिखना चाहें, please feel free to do so while I gear up for today's subject. Right. आइए, हमारा मौजू कुरान एज अ बुक, कुरान एज ए रियलिटी, द इंटायर थिंग। हमारा इन तीनों थीम्स के अंदर में दिनों में हमारा सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इज दिस, इज द कुरान। और इस हवाले से हमने कुछ रिफ्लेक्शंस, विजडम हमने स्कॉलर्स से, कंटेम्पररी एंड मास्टर्स, आज तो हम विल टॉक अबाउट अ वेरी वेरी ग्रेट मास्टर। तो एक क्वालिटी है नॉट फाउंड इन एनी अदर स्क्रिप्चर, ये एक जरा दिलचस्प आज की गुफ्तगू को हम ओपनिंग करते हैं। इट इज द सेल्फ रिफ्लेक्सिव क्वालिटी, द सेल्फ रिफ्लेक्सिव क्वालिटी, which means it speaks of itself in itself. Now, और महफिलों में हम इसके अंदर में बहुत डिटेल में और डेप्थ में जाते हैं कि एग्जैक्टली इससे मुराद क्या है। एंड व्हेन आई से एनी अदर स्क्रिप्चर, तो बस जी ये एक जुमला कहने के लिए मुझे 8 साल लग गए, टू बी एब्सोल्युटली श्योर। आई रेड थ्रू ऑल बुक्स counted as scripture in the various faith traditions of the world, and this then is a quality the Quran has unique to itself. और उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये है कि all believers accept that literal and symbolic levels are present in all scripture. ये यानी absolutely basic बात है that all believers here believe that whatever the words are coming from the founder of the faith, coming from Allah, coming from direct inspiration or revelation. I mean, these are very deep issues, but all believers accept that there are dimensions to the text in all scripture. But they do this correctly on a basis outside the text. यानी ये बात कि हमारी इस इल्हामी किताब में अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, किसी दूसरे रसूल की भी, तौरात हो, जेरेमाया हो, एज़ेकियल हो, whatever the various books are, if there is a claim that these words mean something directly and they mean something symbolic, तो इसकी बेसिस जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं है, वो outside of the text. A saint, a philosopher, a thinker has said, and we accept. एक बात ठीक है, यानी the thing itself is not under argument, but the Quran is the only scripture to have this amazing verse. देखिए जी, ये यूनिक बात थी जो आज के लिए मुझे समझाना जरूरी, that an ayat in the Quran directly tells us straight away that this Quran itself has two kinds of verses. ये अब्दुल्ला यूसुफ अली का वर्जन है, आइए जरा देखते हैं. He it is who has sent down to thee the book. In it are verses basic or fundamental of established meaning. They are the foundation of the book. Others are allegorical. मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ा, पूरा it's a long ayat. Those who are looking up the reference, Surah Al Imran, Surah number 3, verse 7. A beautiful ayat, a great ayat, but here it is. कलाम पाक ने अपनी आयात को दो कैटेगरीज में तरतीब दिया, मुहकम एंड मुतशाबिह. These are technical terms that occur in the Quran
describing itself, यानी अब बात आपकी समझ आई, self reflexive. The fact that the Quran describes its own verses as being muhkam and in a moment मैं भी इसके भी meaning पर आता हूँ. Muhkam and mutashabih itself is a sentence not found in any other scripture directly. It is there indirectly, but not there directly. So muhkam and mutashabih. Scholars जो बड़े masters of tafsir हैं, इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं. मसलन अभी भी हमने देखा कि फाउंडेशनल मोहकम्स का मतलब है एंड मुतशाबे का मतलब है एलेगोरिक. ठीक है, फेयर इनफ. और समटाइम्स दे से इट इज क्लियर मोहकम एंड एम्बिगुअस मुतशाबे. फेयर इनफ. समटाइम्स दे से अ मोहकम इज अ लीगल वर्ड्स meaning it has legal implications and मुतशाबे इज अ नैरेटिव वर्ड्स. उसका कसस से ताल्लुक है, कुछ और हकीकतों से ताल्लुक है जिनका लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है. चलें, ये बात भी समझ आती है. और इवन बेटर एक्सप्लिसिट जो इसका जाहिर है वही इसका मतलब है. एंड इम्प्लिसिट मुतशाबिह, देयर इज अ मेटाफोर इन इट, कनेक्शन इन इट. तो ये यानी मुतफरिक पेयर्स हैं जो इन अल्फाज के लिए बड़े बड़े असातिज़ा ने इस्तेमाल किए हैं कि इनसे मुराद ये है. बट देयर इज वन जो कि मेरा अपना फेवरेट है और मेरा हाई वोट है, और वो इनके ऊपर. आई लव दिस, लिटरल एंड लिटररी. ऑफ कोर्स इसके पीछे केनेथ क्रैग हैं, द माइंड ऑफ द कुरान. लिटरल एंड लिटररी, beautiful. When Allah Ta'ala wants to say something where the meaning is expressed in the words directly, it's literal. And when there is a symbol, a sign, an image, a metaphor, something which raises the quality of the text, तो ये है literal. तो इस तरीके का एक क्वालिटी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी अजीम किताब के अंदर में ये दिया हुआ है, क्वालिटी which makes it unique amongst all scriptures. अच्छा, हम इस थॉट से आगे बढ़ते हैं. And even more amazing are the adjectives the Quran uses to describe itself. देखिए, the words the Quran uses to describe itself. आपने देखा हमने पहले ही दिन कुरान करीम से कुछ बातें की और हमने इसको अच्छी तरह से what we are saying, right, the words. तो इससे मुराद क्या है? इसका एक्चुअली मसला ये है, इसका बेनिफिट ये है. जी, ये adjectives it uses have a purpose. जब कलाम पाक अपने बारे में अपनी तारीफ अपने adjectives यूज करता है तो it has a purpose, and the purpose is to train us, the readers, to have a proper attitude towards the book of Allah. देखिए जी, when Allah subhanahu wa ta'ala describes the book as having a particular quality, उसके दो तरफ बातें जाती हैं. एक एडजेक्टिव जाता है कलाम पाक के हवाले से, और एक दूसरा एक कह दीजिए हुक्म जाता है पढ़ने वाले की तरफ से. बी केयरफुल, इस किताब के अंदर में ये क्वालिटी है, तो तुम इसके अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव यानी एटीट्यूड के साथ अल्लाह के कलाम की तरफ हो. ये यानी बहुत ब्यूटीफुल ये डायनामिक है. आई होप दैट ये विजडम आप तक मैं पहुंचा सकता हूँ. देखें, कलाम पाक के अंदर में कुरान को हकीम कहा गया, द वाइज कुरान. करीम कहा गया, द जनरस कुरान. अरबिक, अरबियन बड़ा सब्जेक्ट है ये कलाम पाक का, अरबिक में पढ़ना एंड ऑल दैट, हम बात कर चुके हैं इस पे. शिफा के हवाले से कहा गया, ये किताब शिफा है. It's very interesting. Somebody was, I was listening to a scholar yesterday. He said, look, Allah Ta'ala says the book is shifa, healing, and not medicine. देखिए क्या खूबसूरत बात.
Allah Ta'ala says that this book is shifa umma baina fi sudur. ये शिफा है उन चीजों का जो कि तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे सीनों में है। तो अब आप देखिए, बट ब्यूटीफुल। मेडिसिन में तो भाई डोज में फर्क पड़ गया, उसका कोई इफेक्ट आ गया, कोई काउंटर इफेक्ट आ गया, कोई गड़बड़ हो गई, एलर्जी हो गई, यानी यू कैन गो इनटू ऑल दैट। बट अल्लाह ताला का चॉइस ऑफ वर्ड देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान दवा है, उन्होंने कहा ये शिफा है। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, किताब, यस क्वाइट ऑब्वियस, किताब हुदा, हिदायत की किताब हुदा, फुरकान, जिक्र, नूर, बयान, एंड मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन गो ऑन लाइक दैट। 42 क्वालिटीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्प्रेड थ्रू आउट द कुरान, इस तरह से एडजेक्टिव्स अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। आज की हमारी गुफ्तगू का एक बड़ा सेंट्रल महवर है, आज हम इस पॉइंट को खास वजह से आप तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। द कुरान एंड द क्वालिटीज, इट्स एडजेक्टिव्स इट यूजेस टू डिस्क्राइब इटसेल्फ। तो पिछली आयत के अंदर में मोहकम और मुतशाबे आयात के बारे में था, और इसके अंदर में पूरी बुक के हवाले से क्वालिटीज की बात हो रही है। ठीक है जनाब, तो ये 42 क्वालिटीज की बात है। फाइन, वंडरफुल। अब मैंने जैसे वादा किया था, आज आज हम मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक खुतबे का एक हिस्सा सुनेंगे, जिसको के मौला ने कलाम पाक की तारीफ में फरमाया। मैं बेहतर, इससे बेहतर कोई बात नहीं कर सकता कि ये मौला की शहादत की याद के दिन हैं, रमज़ान शरीफ की ये तारीखें हैं, और इसके हवाले से भी हम याद करें हज़रत अली को, और हज़रत अली के अल्फाज कलाम पाक के लिए जो हैं एक कमाल की बात, हम इसको भी याद करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। तो वी विल बी लुकिंग एट सीक्वेंस, एक सरमन है ऑन द कुरान, और ज़रा सा ब्रीफ बैकग्राउंड में दे दूं कि जनाब एक किताब है नहजुल बलागा, पीक ऑफ एलोक्वेंस, peak of eloquence, that's the exact translation of the word Najul Balagha, is a collection of Hazrat Ali's sermons, letters and sayings. And the PDF of this book is available for free download easily. MashaAllah, मतलब we live in strange times, ये बहुत easily available है। Ansarian Publications का है ये, it's now standard, it's all over the place. MashaAllah, it's very very good. अच्छा, so नहजुल बलागा पीक ऑफ एलोक्वेंस में जरा सा एक कमेंट हम ये कर दें कि सैयद रजी जो कि उसके एडिटर और कलेक्टर हैं हज़रत अली के अल्फाज के, व्हाट वाज हिज पर्पस। तो ये नहजुल बलागा कैसे, हाउ वाज इट रिटन, हाउ डिड इट हैपन टू। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है जी, कि इट इज एन एंथोलॉजी ऑफ द फाइनेस्ट अरबिक विजडम एंड मोड्स ऑफ रेटरिक दैट कुड बी फाउंड। यानी इट इज ब्रिलियंट कि हजरत अली के खुतबात की नोट्स और यादें और प्रिजर्वेशन इसलिए भी की गई थी that they were linguistic gems, they were the best of thoughts in the best of words. So उस हवाले से सैयद रजी साहब का ये जबरदस्त यानी कलेक्शन का उनका नियत था। Fair enough. Yeah, I mean this is an entire study in itself. How is it? How did Nahjul Balagha come about? Mashallah, it's all there. आज हम अपना सीधा काम की तरफ चलते हैं। सरमन 198 एग्जैक्टली इसी नंबर पे बहुत सारे वर्जन्स में है, अभी हमारा वो भी मसला नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। I would like you to see the way the page looks in the book like this. There is a reason why I'm showing this to you. कि आपने एक खुतबा शुरू किया और उसके अंदर में ये वाला जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं, ये this is the way it looks. ये इस तरह से पैराग्राफ्स में आ रहा है। ठीक है, I mean there's a reason why I'm showing this to you. So inshallah. Now I know I don't want you to read it. I want you to read it carefully, and it will come like this. Let us read it carefully. Here is the greatest disciple of the Master, the Prophet, upon whom be peace, Rasul Pak के बाबे मदीनतुल इल्म। बस क्या मतलब अब ये अजीम शागिर्द के अल्फाज हैं उस तोहफे की तरफ जो उनके अजीम आका ने, उनके मास्टर ने, उनके टीचर ने उनको दिए, नबी करीम ने उनको। आइए, अबाउट द कुरान। अच्छा जी,
क्योंकि ये सीक्वेंस चल रहा है पीछे इस्लाम के बारे में, फिर अल्लाह के रसूल के बारे में, और फिर कुरान के बारे में। तो ये जैसे है, एंड देन fair enough, and then Allah sent to him the book as a light whose flames cannot be extinguished, a lamp whose gleam does not die, a sea whose depth cannot be sounded, a way whose direction does not mislead, a ray whose light does not darken. अब आप देखिए ये यानी एक खुतबा है, एक्सटेम्पोरे है, हजरत अली खुतबा दे रहे हैं। यानी मैं इस मोमेंट को आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि here is a muballigh, an extreme expressive, and he uses ये इस तरह की लैंग्वेज में है। आइए, as you can imagine, this is just like a whole series of phrases literally bursting forth from his heart. जी, a separator of good from evil, whose arguments do not weaken, a clarifier whose foundations cannot be dismantled, cure which leaves no apprehension for disease, and honor whose supporters are not defeated, and a truth whose helpers are not abandoned. Brilliant. So अब देखिए, वो पहले रोशनी की, लैंप की, उसकी बातें थी। अब ये यानी ये मेटाफोर्स की यानी एक किस्म का हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, यानी वेरी वेरी हाई। ठीक है जी। तो ये अल्लाह ताला के कलाम की खूबियां मौला कायनात के अल्फाज में आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर देखते हैं, therefore it is a mine of belief and its center, यानी ये ईमान के लिए किस्म की कान है, ब्यूटीफुल, एक गहवारा है, एक सेंटर है जिधर से तुम्हें ईमान की डेप्थ मिलती ही चली जाए। The source of knowledge and its oceans, the plantation of justice and its pools, यानी इस अजीम किताब के जरिए तुम हक और इंसाफ को दुनिया में प्लांट कर सकोगे। वाह। तो ओशन के लिए देखिए, नॉलेज के ओशंस हैं, जस्टिस के पूल्स। ओके, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लाम एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, द वैलीज ऑफ ट्रूथ्स एंड इट्स प्लेन्स, एन ओशन which those who draw water cannot empty. ये वो बेबहा इल्म का सर चश्मा है जिसके पानी लेने वाले खत्म नहीं कर सकते। ये कोई कुआं नहीं है जो खत्म हो जाए। It's an ocean. वाह। Springs which those who draw water cannot dry up. A watering place which those who come to take water cannot exhaust. यानी हर लेवल पर मौला ने कुरान की अफजलियत साबित कर, ये अगर ओशन है तो ये खत्म नहीं होगा, चश्मा है तो ये खत्म नहीं होगा, ये पानी का जरिया है तो ये एग्जॉस्ट नहीं होगा। ठीक है जी। A staging place in moving towards which travelers do not get lost, signs which no wayfarer fails to see, and a highland which those who approach cannot surpass it. Beautiful. तलाश करने वाले के लिए निशानियों से भरा हुआ है, और एक दफा वो निशानी देख ली तो उसे अनदेखी नहीं कर सकता। ये वो राह है, ये वो शाहराह है। वाह। यानी now notice all these metaphors are in inverted commas geographical metaphors showing the landscape and the geography of the Quran, the largeness of the Quran. It goes on, it's not done yet. Allah has made it. वो एक पैराग्राफ पूरा हुआ, आगे चलते हैं। Allah has made it a quencher of the thirst of the learned,
a bloom for the hearts of religious jurists, यानी फुकहा, beautiful, उनके लिए ये फूल है, एक खुशबूदार फूल है. A highway for the ways of the righteous, a cure after which there is no ailment, an effulgence with which there is no darkness, a rope whose grip is strong, a stronghold whose top is invulnerable. एक रस्सी है जिसको जब आप एक दफा पकड़ लें तो वो टूटेगी नहीं, वाह. और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एक किला है जो महफूज है, और एक दफा जब तुम वहां पहुंच गए तो कोई और चीज उसके, यानी whose top is invulnerable, meaning it cannot be vanquished. माशाल्लाह, वंडरफुल. एक दफा जब कलाम पाक दलील दे दें तो फिर उससे और बेहतर दलील आती नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, वी मूव ऑन. An honor for him who loves it, a peace for him who enters it. I love this word. ये किताब सलामती है उनके लिए जो उसके अंदर आ जाते हैं. हाँ, a peace for him who enters it. Sanctuary, ये किताब एक हिफाजत है, ये अपने अंदर में ले लेती लोग. A guidance for him who follows it, an excuse for him who adopts it. Wow. An argument for him who argues with it, a witness for him who quarrels with it, a success for him who argues with it, a carrier of burden for him who seeks the way, a shield for him who arms himself against misguidance, a knowledge for him who listens carefully, a worthy story for him who relates it, and a final verdict of him who passes. ये लास्ट. अब आपने देखा ये मौला कायनात का खिराज है, तारीफ है कायनात की अजीम तरीन मौजज़े और खूबसूरती. कल हमने एक हदीस पाक कोट की थी दैट अल्लाह ताला का, यानी ये कलाम कुरान अफजल है कलाम पे जैसे कि अल्लाह ताला अफजल है अपनी मखलूक पे. तो ये किताब, इसकी ये शान उस शख्स को समझ आती जो इसके करीब तरीन चाहने वालों में, अव्वलीन सुनने वालों में, अव्वलीन तफसीर करने वालों में, समझने वालों में से था. अच्छा, there a set of qualities that sends one into rapture. Imagine, यानी मैं जरा सा इसको एक एक यानी पूरा खुतबा तो हमने आपको दे दिया. देखें जी, इमेजिन द मोमेंट, यानी जिन लोगों को कि ये खुश नसीबी हुई है, मस्जिद कूफा जाने का मौका मिला है, इमेजिन द मोमेंट. Here is Hazrat Ali alayhi salam standing at the member of Masjid Kufa giving this khutbah, speaking from his heart about Islam, his beloved Prophet and the Quran. The khutbah ends here. Now, मेरे लिए जो बात के एक, यानी मुझे जो बिल्कुल परेशान कर देती है कि what, यानी कि what. सैयद रजी ने कई खुतबों के बारे में इस तरह की बातें लिखी. Another part of the sermon, another part of the sermon, parts of the sermon could not be preserved. इस किस्म के नोट्स मुतफरिक खुतबों के अतराफ में मिलते हैं, लेकिन इस खुतबे के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं. इट इज देयर, इसके आगे और अतराफ में कोई नोट्स नहीं है. अब एक दिन बस हमें क्या सूझा, इट अकर्ड टू मी टू लुक एट समथिंग. मेरी तबीयत में आया कि मैं जरा इस खुतबे के ऊपर गौर करूं, और मैंने ये किया कि ये जिस तरह से अभी मैं पढ़ा उसकी मैंने तमाम क्वालिटीज को अलग अलग लाइन पे ले लिया. यू नो हाउ इट इज, you copy paste a document from a PDF file into a Word and then you use a cursor. कोई कमाल नहीं, very simple. And then here it is. This is what it is. ये एक look है. I'm putting this again so that you are able to see it. This is how it looks. मैंने इसके जुमलों को अलग अलग chop off किया.
और फिर हमने बुलेट पॉइंट्स के बजाय नंबर लगा दिए, अगेन नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इन द कंप्यूटर। They were 42. यानी अभी अभी जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं, they were 42. Yes, exactly 42. तो अजीजों और दोस्तों, अगर आप लोग सुन रहे थे शुरू से, इस कमाल का क्या जवाब देंगे, इस मोजज़े को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कलाम पाक के अंदर में जो एडजेक्टिव्स यूज किए हैं अपनी किताब के लिए, वो एग्जैक्टली 42। और यहाँ मौला कायनात खुतबे में तकरीर कर रहे हैं, और ये एक पूरे पैराग्राफ के अंदर में ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड इट सो हैपेंस दैट हियर इज द खुतबा एंड हियर इट इज, कोई मिसिंग पार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड देयर आर एग्जैक्टली 40 praises qualities। वल्लाह ये कमाल जो है, ये उस दर्जे ही की बात हो सकती है जो कि हम लोग, यानी किसी और महफिल में किसी ने कहा कि भाई तुम किसकी बात करते हो। हजरत अली नजरुल बलागा में एक जगह लिखते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से कलाम पाक के मानी और उनकी तस्रीहात और उनके मोमेंट्स मैंने अल्लाह के रसूल से इस तरह फॉलो कर कर के सुने हैं, सीखे हैं, जैसे कि ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ साथ घूमता। क्या इमेज। एक और जगह आपने फरमाया कि मैंने वही की खुशबू सूंघी। अल्लाह, यानी I have enjoyed, I have sent the perfume of revelation। फ्रेंड्स, रेवलेशन के अल्फाज तो हमें समझ में आते हैं, उसके यानी अल्फाज, वर्ड, सेंटेंसेस, सूरत, आयत, ये सब तो समझ में आता है। खुशबू, अल्लाह, वी हैव नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, ये वो मोजज़ाती कमाल की बात थी जो सिर्फ हजरत अली में और उनका ये कमाल हो सकता है कि वो एक लेक्चर में, एक स्पीच में वो इत्तेफाक से ऐसी बात कर जाएं जो बहुत बाद में जब लोग गौर करें तो उसके अंदर में ये एक डोंट गेट मी रॉन्ग, आपने और खुद बात में यकीनन कलाम पाक के बारे में बातें की हैं, और यकीनन कलाम पाक के सिमिलर और जगहों पर हैं, बट उन तमाम जगहों पर और दीगर टॉपिक्स भी हैं। अल्लाह का अपना एक अंदाज है कलाम का और उसका। तो ये पर्टिकुलर चीज, ये इत्तेफाक से ये होना, ये कमाल, दिस इज समथिंग जो आज की रात के लिए याद करना अच्छी बात। दोस्तों, मैं एक आखिरी जनरोसिटी की बात पर आ गया और कलाम पाक के इस विजडम की तरफ आता हूँ कि ये इस किताब की कमालात और इसकी खूबियां क्या है। जैसे आपने फरमाया, मैं ये किताब वो है जो इल्म के तलाश करने वालों की प्यासों की ये बुझाता ही रहता है, यानी ये कभी भी क्वेंच में कमी नहीं आती। तो आइए एक मेजर रिफ्लेक्शन आज की हमारी इस इख्तितामी गुफ्तगू में, और एक ऐसा विजडम जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने असातिज़ा से, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे फाइनल मार्क ऑफ जेनरोसिटी। व्हाट इज दिस बुक फ्रेंड्स? देखें, हमने 2 दिनों से एक बड़ी बात की और बड़े मौके के अंदाज में कहा, द कुरान इज अ जर्नी ऑफ लाइफ। हमने कहा कि कलाम पाक एक अल्लाह ताला की किताब जो है, एक जिंदगी का एक मैप है, इट्स अ मैप। और एक अंदाज में अगर हम इसको समझें तो यूं है कि भाई जिंदगी बर्थ से शुरू होती है और डेथ तक चलती है, और सूरह नंबर 1 यानी कि सूरह फातिहा से सूरह फातिहा शुरू होती है। और हाँ, अब बस जरा सा यहाँ नोट कीजिएगा, हाँ, यानी कलाम पाक में तो 114 सूरत, जरा सा इस पे एक तो कलाम पाक अगर जिंदगी की एक मिसाल है, तो सूरह इखलास के ऊपर एक सेंस में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। देखें ना, एक मेरे, अगेन आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम माय टीचर्स,
पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की शान को समझने ही में तो गुजरी, और यहाँ से क्या चीज है जो हम अगले जहां में लेके जाएंगे, व्हाट इज इट दैट वी विल टेक। तो भाई हम अल्लाह ताला का जो इल्म है, जो शान है, जो इरफान है, दैट इज द ओनली थिंग। तो एक सूरह मुबारका बिल्कुल एंड में 112, यानी टोटल नंबर ऑफ सूरज और 114। तो सूरह नंबर 112 सूरह इखलास इज ओनली अबाउट अल्लाह। तो इसकी मिसाल लोग यूं देते हैं कि जब आप जिंदगी से खुदाफिज कहें तो हम दुआगो हों कि हमारे दिल में अल्लाह ताला की जो नूर आया है, जो समझ थोड़ी सी आई है, यही है वो चीज है जो हम यहाँ से अपने साथ आगे लेके जाएंगे। और यहाँ से क्या लेके जाएंगे? व्हाट इज इट दैट इज वर्थ टेकिंग, और इवन आर वी एबल टू टेक। तो अल्लाह ताला को हमने अपने उसके जलाल में, उसके जमाल में, उसके कमाल में, हमने जिंदगी की ऊंच नीच में, हमने जंग में और जदल में, बीमारी में और सेहत में, दोस्ती में और दुश्मनी में, अपनों में और परायों में, गैरों में और अपनों में, सच्चों में और झूठों में, we can go on like this। ये वो तमाम डायमेंशंस हैं जिस पर सूरह फातिहा से लेके सूरह इखलास तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी अजीम सूरतों में हमारे लिए एक किस्म का नक्शा और एक मैप दिया। इधर तक आप मेरे साथ, ठीक। लेकिन जहां एक तरफ हम ये कह सकते हैं इल्मी तौर पर एज अ पॉइंट ऑफ नॉलेज कि भाई सूरह इखलास इज ओनली अबाउट अल्लाह, खालिस अबाउट अल्लाह। फिर इसके बाद ये दो सूरतों का क्या काम, यानी सूरह फलक और सूरह नास का सूरह इखलास में रखे जाने का क्या फायदा है, या यानी हिकमत है। अगर हम ये कहें कि ये एक जर्नी है और ये जर्नी बर्थ टू डेथ है, तो बिल्कुल सही है जी। सूरह फातिहा एहदिना सिरातल मुस्तकीम हमारी जिंदगी का रास्ता शुरू हुआ, और सूरह इखलास पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान तक पहुंच गए। सो क्या विजडम है इन दो सूरतों का उसके बाद रखते हैं? बस जी, ये जनरोसिटी का एक ऐसा विजडम है जो मैं आज ये आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप यानी मेरे लिए दुआ होइएगा, गौर कीजिएगा, ये वाकई कमाल की चीज। दोस्तों जरा गौर कीजिएगा सूरह फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, से आई सीक रिफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ डॉन। अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल तर्जुमा बचपन से पढ़ते चले आए। कुल औज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, from the evil of everything that he has created, from the evil of the night when it covers up, from the evil of those who blow on knots, from the evil of the envier when he envies, or when envy is done। यानी ये तो याद है ना, इस उम्र में हम सबको सूरह फलक का तो तर्जुमा याद है। अब आप खूबसूरती वाली बात देखिए, ये जो चार शर के वर्ड्स हैं, ये एग्जैक्टली जिंदगी के चार मेजर फेजेस की तरफ, यानी कमाल देखिए आप। गोया अभी हमने जैसे देखा पूरी जिंदगी बचपन से लेके जवानी, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, मैच्योरिटी एंड डेथ, अगर ये कलाम पाक 1 से लेके 114 तक की सूरतों में ये तमाम चीजों को अलामती और सिंबॉलिक अंदाज में बता रहे हैं, तो ये जो आखिरी दो सूरतें हैं उसमें एक और कमाल कि जिस तरह मिनिएचर में, जिस तरह डीएनए के एक सेल में, यानी कमाल देखिए, इंसान है और इंसान के जिस्म के अंदर में एक सेल है, और उस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, उस न्यूक्लियोलस के अंदर में क्रोमोसोम्स हैं, उस क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए है, और वो डीएनए के जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे के पूरे दूसरे इंसान की एक क्लोन की कॉपी बना सकते, यानी उस मिनिएचर के अंदर में पूरा इंसान छुपा हुआ। ये अल्लाह ताला की फरावानी, कमाल है। तो एग्जैक्टली कुछ उसी मिसाल से सूरह फलक के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी की तमाम फेजेस को एक मिनिएचर में दे रखा है। ये जरा सा झलक देखते हैं। मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। फाइन, अब आई कैन नॉट गो इन मोर डिटेल अबाउट दिस आयत। मिन शर्रि मा खलक, जिंदगी का वो फेज जब हर चीज जो खल्क में है वो मेरे लिए जानलेवा हो सकती है, तो वो बचपन।
वो इन्फेंसी है, वो ओपनिंग मेरे जिंदगी के 2.5 साल हैं। और तमाम वालिदैन जिन्होंने 2.5 साल के बच्चे को कहते हैं ना बेबी प्रूफ द होम, तो हमें मालूम है कि बच्चे की इनक्रेडिबल क्यूरियोसिटी उसके लिए जानलेवा है, उसके लिए शर है। यानी nothing good or evil is such that it cannot be a danger unto us at this age. min sharri ma khalaq, यानी इसके और डेप्थ वाली मीनिंग्स में आफात समा यानी समावी वो खल की वो जो अर्जी जो बातें हैं, टाइफोन्स एंड ट्विस्टर्स एंड वायरसेस, ये तमाम सब अपनी जगह, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट। लेकिन मिन शर्र मा खलक का जो मैं मिनिएचर समझाना चाहता हूँ अपनी इस वाली गुफ्तगू में कि किस तरह कुरान इज अ जर्नी ऑफ लाइफ, ये जनरोसिटी का एक बहुत खूबसूरत अंदाज देखिए, हाउ इट द कुरान जनरेट्स एंड गिफ्ट्स मीनिंग टू दोज हु सीक इट। अब आप देखिए, मिन शर्र मा खलक बर्थ और इन्फेंसी का फेज है, जब हर चीज जो खल्क है मेरे लिए जानलेवा शर, और रात के अंधेरे से जब वो छा जाए, ये वो वक्त है एडोलेसेंस जिसमें मैं हमेशा इस किस्म के सवाल पूछता हूँ, लोग ऐसे क्यों हैं जैसे। तो पूरे जब वो रात फैलती है, रात अंधेरे की अंधेरा आता है, तो वो इग्नोरेंस की है, सुपरस्टिशन की है, करप्शन की है, अंधेरों की बातें। तो ये मेरी एक फेज है जिसमें मैं सवाल नफासात फिलौकत, और मेरा रेप्यूटेशन के खिलाफ अफवाहें फैलने का वक्त उसी वक्त होगा जो मेरा रेप्यूटेशन होगा। यानी आई कैनॉट हैव रूमर्स अगेंस्ट माय रेप्यूटेशन until I have achieved something in it। तो ये अडल्टहुड की और उसकी निशानी है। और फिर बिल्कुल आगे, हासिद उसी वक्त मुझ पर हसद करेगा जब मैंने जिंदगी में कुछ कमाया होगा और कुछ दिखावे के लिए चीजें होंगी जिस पर के लोग हसद करेंगे। इट इज अ मेटाफोर, एक तमसील है, लेकिन मेरा यानी कहना यह है कि सूरह फलक और सूरह नास के अंदर में एक मिनिएचर में पूरी जिंदगी की स्टेजेस दे दी गई। सूरह फलक अभी हमने यहाँ देखा, और सूरह नास में तो इससे भी ज्यादा अजीब बात है। अक्सर बच्चे और थिंकर्स सोचते हैं कि ये जो लफ्ज नास है ये इतनी बार रिपीट क्यों हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। यानी ये अल्लाह ताला ने लफ्ज नास को 3 मर्तबा रिपीट क्यों किया हुआ है। अल्लाह ताला प्रोनाउन यूज कर सकते थे और ये हो सकता था कि ये अल्लाह ताला का कलाम होता, कुल औज़ु बिरब्बिन नास व मलिकुहु व इलाहु, यानी इट कुड हैव बीन लाइक, बट इट इज नॉट। तो मैं समझता हूँ कि इधर भी अब आप देखिए ये 3 जो खूबियां हैं अल्लाह ताला की, 3 जो जो अलकाब हैं, उसके पीछे क्या विजडम देखिए। कुल औज़ु बिरब्बि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। मैं इसके अंदर में वो आगे नहीं जा रहा, मैं जरा इस 3 अल्फाज के ऊपर गौर कीजिएगा, जरा सामने देखिए, रब्बिन नास। तो तरबियत और रबूबियत का कमाल ही यह है कि मैं जमीन में रेंगता हुआ, लेटता हुआ, आखिरकार जब मैं खड़े होने के लायक हो जाऊं तो ये रबूबियत की शान, ये खड़ा होना, ये जिंदगी का एक फेज है जिसमें मैं बेबस था, हेल्पलेस था, बैठा रहता था, रेंगता रहता था, अनटिल मैं खड़ा हो स्टैंड। तो स्टैंडिंग का जो एज 0 से खड़े होने की जो फेज है, आप उसके लिए जिंदगी का वो फेज याद करें। अब देखें बादशाह, जनाब बादशाह के सामने आप इमेजिन कि सफ पर सफ खड़े हैं उनके वज़रा, उनके सोल्जर्स, उनके सिपह सालार, उनके स्टीजेस, उनके यानी बादशाह सलामत के सामने जो जेस्चर है वो ओबीडियंस का है, वो ओबीडियंस का, बादशाह का हुक्म है तो आपने करना। तो हुक्म की ओबीडियंस कब होगी, जब आप बादशाह की जबान समझ सकते हैं और आप अपनी जबान उसको समझ सकते हैं। तो ये गोया जिंदगी का वो सारा फेज हुआ जिसमें ओबीडियंस हम पर लाजिम है,
मुमकिन है और उस ओबीडियंस के लिए जिस शान की जरूरत है फ्रेंड्स, तमाम ओबीडियंस सजदे ही में है। तो वो गॉड ऑफ मैनकाइंड सामने जो जेस्चर है वो सुजूद गोया कयाम है। ओबीडियंस की बेहतरीन मिसाल रुकू है और सुजूद अल्लाह ताला से सबसे बड़ी कुर्बत की निशानी है। अल्लाह होना, ओबीडियंस में हुक्म के लिए खड़े होना और अल्लाह के सामने ये मिनिएचर में जिंदगी के तीनों फेजेस एक झटके में सिरे। तो दोस्तों अब हमें समझ में आई कि किस तरह जिंदगी की पूरे स्टेजेस 1 से 112 में हैं और गीगा डेप्थ्स हैं, लेकिन इन दो सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया देखो ये ऐसा ना हो कि जिंदगी के इन फेजेस में तुम्हारे ईमान में कोई गड़बड़ें, दुआएं, नवाफिल इबादत, रोजे अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि इस अजीम किताब के हवाले से और इस अजीम महीने की यादों में कुछ कुछ अच्छाई हो जाए। हमारे अतराफ में बड़े मसले हैं बहुत सीरियस। थैंक यू। जी थैंक यू। यस यस भाई, लोग कह रहे हैं कि नमाजों में दुआओं में हमें याद रखेगा। जी सर बिल्कुल, आप भी हमें भी याद रखेगा। जी जी जी। हमने क्वेश्चन आंसर सेशन का वो डाला है अगले मंगल के लिए, नेक्स्ट ट्यूसडे। हाँ, एक सवाल हमें आया था, बस उसके बाद फिर आई विल देन टर्न टू अ दुआ एंड कंक्लूड कि ये बड़ी रातों में हम लोग क्या पढ़ें और इसका। तो देखें जी, ये असल में बहुत सारी अच्छी यानी तजावीज़ आर अवेलेबल। इसके लिए बहुत सारे औरात, दुआएं, नवाफिल, अपने असातिज़ा को और नवाफिल का पढ़ना, मुतफरिक नियतों से दुआओं का करना एंड ऑल दैट। तो दे आर अवेलेबल इन ग्रेट नंबर। However, यानी डॉक्टर हामिद हसन बिलग्रामी का जो एक छोटा सा एक पैटर्न है, इफ यू लाइक मी टू शेयर दैट विथ यू, तो वो मैं आप लोगों को एक स्कैन किया हुआ पेज, दो पेजेस हैं, मैं आपको वो भेज देता हूँ, आप एक नजर वो देख लीजिएगा। इट इज मतलब as I said, there is a great variety here, and I do not want you to be limited to anything which I say. इसके अंदर में आपके अपने ज़ौक़, आपका अपना टाइम और अपनी चाहते जो हैं वो उसके बहुत इसमें फ्रीडम है, इसमें बहुत गुंजाइश है। अच्छा जी। um, यस थैंक यू। आइए एक दुआ करते हैं और आज के लिए हम खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। O Allah, bless our Lord and Master Muhammad, upon whom be peace, and his progeny, in number as many times as there be letters in the Holy Quran, and on each letter 1,000 times. O Lord, accept from us this effort to respect, to read, to ponder, to reflect, to learn from, and investigate the vast generosity of your word. O Lord, give us the wisdom to have the insight, the large-heartedness to see beyond the pettiness and the smallness of our own minds,
our own concerns and our own limited understandings. Our Lord, take us step by step, take us into your service, into your intimate company, into the company of those whom you have loved, so that we are able to benefit and be of use and be people of light in this age of enormous darkness. Oh Lord, we pray for forgiveness for any errors, for any omissions, lapses, sins of omission and commission. Oh Lord, we request that you make this less be much in your sight, and you make this little, unworthy and broken as it is, be whole and fulsome in your sight. And you, as the giver of mercy, you, as the giver of infinite goods, our Lord, we pray for them with such broken words and with such broken hearts as we do. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Our Lord, do not let our hearts deviate after you have guided us, and grant us from your mercy, for you are the giver of infinite mercy. This is the 8th verse of Surah Al Imran, immediately following the Muhkam and the Mutashabihat ayat that studied, which shows brilliantly that all those who are obedient unto Allah keep praying, "O Lord, do not let our hearts deviate after you have received guidance, and have mercy upon us, for you are the giver of infinite gifts. Innaka antal wahhab, the one who gives forever. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillah. Ameen. Sab, I have a question. Ji. Translation of the Nahjul Balagha were you reading from? The one I have is really, which was the one? This was a beautiful Peak of eloquence. This was Peak of Eloquence. Acha, the same one, which is available here, because it's not the same in my book. मैं आपको अपनी कॉपी भेज देता हूँ जहाँ से मैंने ये पेज लिया था. ठीक है मैं फिर वो PDF कर लूँगी डाउनलोड. जरूर. ये अंसारियान पब्लिकेशन. Yes, I understand what you're saying. एक Peak of Eloquence के नाम का यूनाइटेड स्टेट्स वाला वर्जन छपा हुआ है, which is also in the market. लेकिन ये वाला जो है पाकिस्तान का अंसारियान पब्लिकेशंस का, this is the one which I have been, and it's available on PDF. तो आप जरा सा देख लीजिएगा, टेक्स्ट से पहचान लीजिएगा. It will be. Yes. Thank you, Abbas. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Janab. बहुत शुक्रिया. All the best. Thank you very much, sir.